1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 1 चैप्टर 1 वर्स से 25 वर्स, ड्यूटरनॉमी 3 चैप्टर 4 चैप्टर। ल्यूक 1 चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन से 25 वचन, व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 4 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं आप फादर गॉड, आपने हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो सच्चाई का रास्ता दिया है, वो रास्ता पिता परमेश्वर हमारे से अलग होने मत दे, हमारी आंखों से लुप्त होने मत दे, हमारी समझ में से वो खो जाने मत दे। तेरी सच्चाई बनी रहे। तेरी सच्चाई एकमात्र ऐसी बात है खुदा परमेश्वर कि हम हर झूठ के ऊपर फतह पाते हैं। अब फादर गॉड, हर झूठ के ऊपर जय का झंडा लहराना तेरे सच्चाई ही के द्वारा होता है। इसीलिए विनती करते हमें सच्चाई का सामना करा और झूठ को पर्दाफाश करके निकाल दे हमारे जीवन में से। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे ल्यूक 1 चैप्टर 1 वर्स से 25 वर्स तक। ल्यूक्स प्रीफेस। The conception of John the Baptist and of Christ, the nativity of John, Zechariah's prophesy. For first verse से पढ़ेंगे, for as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us, even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order most excellent the Ophilus, thus that thou mightest know the certainty of those things wherein thou hast been instructed, where was in the days of Herod the king of Judea a certain priest named Zacharias of the course of Abia, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth, and they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. And they had no child, because that Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. And it came to pass that while he executed the priest's office before God in the order of his course, according to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. And there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God, and he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife well stricken in years. And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God, and am sent to speak unto thee, and to shew thee this glad tidings. And behold, thou shalt be dumb and not able to speak until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season. And the people waited for Zacharias, and marveled that he tarried so long in the temple, and when he came out, he could not speak unto them. And they perceived that he had seen in vision in the temple, for he beckoned unto them, and remained speechless. And it came to pass that as soon as the days of his ministry
ministration were accomplished, he departed to his own house. And after those days his wife Elizabeth conceived and hid herself 5 months, saying, Thus said the Lord, dealt with me in the days wherein he looked on me to take away my reproach among men. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन से 25 वचन तक, BSI बाइबल में से। परिचय। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच पे बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठाक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये एक अंडरलाइन कीजिए। देखिए, अधर्मियों के बारे में परमेश्वर का क्या प्लान है। वो क्या कहता है, और आज्ञा न मानने वालों के लिए क्या करेगा, वो धर्मियों की समझ पर लाए। हालेलुया, ये हमारा मिशन काम है। ठीक है। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर को चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। यीशु के जन्म की घोषणा। बस यहाँ तक 25 वचन तक। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर के आत्मा, हम विनती करते हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑल्टर लीनर्स पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।